میں تو پنجتن کا غلام بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اس خطیب کو آپ کے حوالے کر دوں جو اس زاویے پر، اس راہ پر، اس سڑک پر وہ خطاب بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت انوکھے انداز میں کر سکتا ہے۔ آئیے ملاقات کریں عمدۃ الخطبہ حضرت قاری مقصود اکرم صاحب اشرفی استاد دارالعلوم اہل سنت غریب نواز۔ آپ نے حضور قائد ملت حضرت علامہ حافظ اللہ صاحب علیہ کا نام سنا ہوگا۔ حضور اجمل العلماء کے طرفوں کی خاک کی برکتوں سے الحمدللہ رب العالمین پورے ملک میں مشہور معروف ہے، اسلام کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین پورے ہندوستان میں ان کو جانا جاتا ہے۔ اور وہ عظیم کام کیا ہے بیضاء کی سرزمین پر، جسے ہم اپنی زبان میں جس دارالعلوم کو دارالعلوم اہل سنت غریب نواز کہتے ہیں، ان کی کوششوں نے، کاوشوں نے اور حضور اجمل العلماء کی دعاؤں نے یہ کام کرنے کے لیے خدا کی قسم انہیں موقع دیا اور بڑا خوبصورت کام وہ کر کے چلے گئے۔ رہتی دنیا تک لوگ جب غریب نواز کو دیکھیں گے تو انہیں یاد کریں گے۔ آئیے ان کے جانشین، ان کے شہزادے حضرت قاری مقصود اکرم صاحب اللہ اشرفی مدثر النورانی سے ملاقات کریں، نعروں سے استقبال کریں، بلند آواز سے نعرے کا جواب دے، جن کے اندر حسین پاک کی جتنی محبت ہے اتنی آواز بلند کر کے نعرے کا جواب دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس سرکار اعظم بابو خانقاہ اشرفیہ، جو ذکر شہیدی کرنے کو تیار ہوا ہے، مولا کی عنایت کا وہ حقدار ہوا ہے، اور اشرف کی محبت کا تو ایسا ہے سمندر جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ ممبر پاک پر جلوہ فرما مرشد گرامی حضور اجمل العلماء، میرے آقا نعمت حضور معظم باہو صاحب اللہ، میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان لیکون علی العالمین بشیرا ونذیرا، والصلاة والسلام على من أرسله كان للكافة الخلق سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئی ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، در آئے بستہ راز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارم، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد،
الہی کا بود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء بگیر دامے والا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ آئے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ محبت میں جھوم کر نذران عقیدت بشکل درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بابا سے بلند پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ یا وسلم۔ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ قوت دست سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات سر شام سے لے کر اب تک یہ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور اب یہ پروگرام اپنے منزلوں کی طرف قدم رنجا ہے، اس وقت میں داخل ہو چکا ہے جو صوفیہ کے اصطلاح میں قبولیت دعا کا وقت ہوا کرتا ہے، اور ذکر رسول میں آل رسول کی آمد ہو جائے تو وہ محفل ہی نہیں رہتی ہے بلکہ معراج ہو جایا کرتی ہے۔ بے شک سبحان محفل کی بھی معراج ہو جاتی ہے، محفل میں شرکت کرنے والوں کی بھی معراج ہو جاتی ہے۔ یہ جماعت اہل سنت کا اپنا نصیبہ ہے کہ غور تو کریں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تراشنے کے لیے حاضر ہوا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ حضرت انس صحابی رسول بیان فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا فما یریدون ان تقع الشعرۃ الا فی یدی رجل، یعنی جب آپ کے سر مقدس سے منہ مقدس جدا ہوتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتے ہیں، فرش پر نہیں گرتے ہیں، صحابہ کرام کا ایک نورانی مجمع لگا ہوتا ہے۔ حضرت انس صحابی رسول بیان فرماتے ہیں جیسے ہی مصطفیٰ کے جسم اقدس سے منہ مبارک جدا ہوتے ہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کاش میرے حصے میں منہ مبارک آ جائے، زلف رسول کا کوئی ٹکڑا آ جاتا، زلف رسول کا کوئی حصہ آ جاتا۔ یہ سنیوں کا نصیبہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے جو ہے کردار کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے ایک عمل کو دیکھ کر جو ہے ان کے عمل پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیا جائے وہ صحابہ کا دور تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے روبرو دیدار کیا کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ ہم نے روبرو نہیں دیکھا ہے، لیکن مصطفیٰ کا چہرہ ہم نے دیکھا ہے۔ اولاد مصطفیٰ کے چہرے پہ ہم نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، اولاد مصطفیٰ کے جلوے میں ہم نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہے، نظر مصطفیٰ جو ہے آل رسول کے صدقے میں ہم نے مصطفیٰ کا جو ہے نظارہ کیا ہے، مصطفیٰ کے ظلم کا نظارہ کیا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کا نظارہ کیا ہے، مصطفیٰ کے قدموں کا نظارہ کیا ہے، مصطفیٰ کی آمد کا نظارہ کیا ہے، اور ہم نے محسوس کیا ہے اس لیے کہ جہاں آل رسول ہوتا ہے مصطفیٰ کی رحمتیں وہی ہوتی ہے، جہاں آل رسول بیٹھتا ہے مصطفیٰ وہی جگہ گھر ہوا کرتے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیا جائے یہ صرف آل رسول کی محفل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے رسول کی محفل ہے، یہ محمد مصطفیٰ
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से आज़म हक है। हज़रात, मुए रसूल भी हमारे हिस्से में, सुन्नत रसूल भी हमारे हिस्से में, बरकत रसूल भी बेशक हमारे हिस्से में, रहमत रसूल भी हमारे हिस्से में, नेमत रसूल भी हमारे हिस्से में, नजर रसूल भी हमारे हिस्से में। अजी जी खोल कर कह दीजिए, सुल्फे रसूल भी हमारे हिस्से में, आले रसूल भी हमारे हिस्से में। हक है नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, खानदाने मुस्तफा, उर्से आज़म बाबू सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि ये ऐसे नबी हैं, किसी और नबी के चेहरे को खुदा ने वक़ुहा नहीं कहा है, किसी और नबी के जुल्फ का जिक्र कुरान में नहीं है, किसी और नबी के हाथ का जिक्र कुरान में नहीं है, किसी और नबी के जो है चेहरे का जिक्र कुरान में नहीं है, किसी और नबी के कदमों का जिक्र कुरान में नहीं है, किसी और नबी के सीने का जिक्र कुरान में नहीं है। वो कौन नबी है जिसके सीने के बारे में खुदा ने फरमाया है अलम नशरह लका सदरक? वो कौन रसूल है जिसके जुल्फों की तारीफ कुरान में है? वो कौन रसूल है जिसके नामों की बरकत है और नामों का जिक्र कुरान में है, जिसके जो है पढ़ी हुई नमाजों का जिक्र कुरान में है, जिनके आलों का जिक्र कुरान में है, जिनके जुल्फों का जिक्र कुरान में है? वो कोई और रसूल नहीं है, वो मेरे रसूल है, जो हम सबके रसूल है, जो रब के महबूब है। हक है बेशक। हज़रात, मुझे कहने दिया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सुन्नियों की किस्मत को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि सैयदी सरकार आला हज़रत इसकी तर्जमानी इस तरह कर रहे हैं। मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिसमें मेरे घर भर का वाला हो, चाहे वो जुल्फ़े रसूल हो। आशिक़े रसूल को ये तस्लीम नहीं है, अगर जुल्फ़े रसूल जिसमें अक़ल से जुदा होते हैं तो जमीन पर गिर जाए, चाहे वो सुलह हुदैबिया का मौका हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, हज़रत उमर मसूद बिन सब्ती जो है तशरीफ लाते हैं और जासूसी करते हैं। आपका बयान है इदा तवज़्ज़अ नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कादू यक्तलूना अला वज़ूही, तो मैंने देखा था कि मुस्तफा वज़ू फरमा रहे हैं और जैसे ही मुस्तफा वज़ू के लिए पानी लेते हैं और अपने चेहरे पर इस्तेमाल फरमा के जमीन की तरफ डालना चाह रहे थे, यक्तलूना अला वज़ूही, तो उसका साले नबूवत को लेने के लिए सहाबा मार करने लगते हैं। ऐसा लगता था कि सहाबा आपस में क़िताल करेंगे, क्यों लेने के लिए? इसलिए कि वो सिर्फ पानी नहीं था, वो मेरे नबी के जिस्म से लगा हुआ। हक है बेशक। बहुत तो नबी के जिस्म से लगे हुए कतरे पानी का ये आलम है कि सहाबा उसकी तौहीन जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आले रसूल की तौहीन भी आशिक़े रसूल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक हक है। आशिक़े रसूल न जुल्फ़े रसूल की तौहीन, नाते रसूल की तौहीन, न नामे रसूल की तौहीन, न जो है हाले रसूल की तौहीन, हमसे तो ये सब देखा ही नहीं जाएगा। इसलिए कि हमारे माँ बाप ने हमारी खुदी में सिर्फ ईमान नहीं बल्कि हमें पैदावार की मोहब्बत को भी डाल दिया है। ये मेरे माँ बाप की वफादारी है जो हम खड़े होकर जिक्र रसूल के साथ जिक्र आले रसूल के बेशक बहुत खूब। वरना कितने छोटे बड़े जलसे कॉन्फ्रेंस ऐसी होती रहती है, तहफ़्फ़ुज़े सहाबा कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम कॉन्फ्रेंस। जिसने इस्लाम को इस्लाम बनाया है, जिसने कुरान को कुरान बनाया है, जिसने हदीस को अमली जाना पहनाया है। ए हुसैन, ए बेटा हुसैन, ये करबला की धरती है, इसे देख ले, यही वो धरती है जहाँ सिद्दीक़ अकबर की सदाकत चीख मारेगी और तुझे बचाना पड़ेगा, फारूक आज़म की अदालत चीखेगी और तुझे बचाना पड़ेगा, उस्मान गनी की सखावत चीखेगी और तुझे बचाना पड़ेगा, मौला की शुजाअत इधर उधर होते गर्दिश करेगी, हाथों हाथ तुझे लेना पड़ेगा। तेरे भाई हसन मुश्तफा का हिंद जो है इधर उधर तलाश करेगा। ए बेटा हुसैन गले लगाना होगा, शहादत हो या सदाकत हो या सखावत हो या शुजाअत हो या शहादत हो, एक हुसैन में नबी ने इस सारी चीजों को डाल दिया है। अब कोई नहीं बचा सकता है, अगर कोई बचा सकता है तो
बात है। आए देखें, आज जमाना ये कहता है कि उलमाए किराम से हमें मिलता क्या है, ये झगड़ा करना सिखाते हैं, ये मार करना सिखाते हैं। जानते हो ये सारी चीजें हमको क्यों मैसर आई हैं? ये उलमाए किराम की बहार से मैसर आई है। आज आप देख रहे होंगे एक जगह खाली नजर आ रही है। मेरे वालिद बुजुर्गवार हज़रत अल्लामा हफीजुल्लाह कादरी अशरफी अलैहि रहमत व रिज़वान सिर्फ आलिम दीन ही नहीं थे, बल्कि वो मेरे दादा पीर के इंतखाब थे। मेरे दादा पीर ने अमर तौबा की धरती पर एक नगीने को तराश के ऐसा तैयार कर दिया था और ऐसा बात दिया था कि जब वो नगीना गंज के जिनकी धरती पर पहुंचता है तो चारों तरफ इल्हार हो रहा था। एक हफीजुल्लाह तन्हा वहाबियत का भी मुकाबला कर रहा था, अहले हदीसों का मुकाबला कर रहा था, बयाना का मुकाबला कर रहा था, अहले तशद्दुद का मुकाबला कर रहा था। तो देखने वाला तो ये देख रहा था, ये तो एक कमजोर घर का, एक गरीब घर का नुमाइंदा है। देखने वाला ये देख रहा था, ये तो कमजोर घर का एक यतीम बच्चा है, एक चटाई पर बैठने वाला एक मौलवी है, एक हकीर आदमी है। लेकिन नहीं, इलाके के कुछ अकीदा लोगों की निगाहें देख रही थी। अगर इसको देखेंगे तो ये कमजोर नजर आएगा, अगर इसको देखेंगे बगैर बाप का बेटा नजर आएगा, अगर इसको देखेंगे गरीब माँ का बेटा नजर आएगा, अगर इसको देखेंगे अपनी जमात का इस वक्त मौलवी नजर आएगा। इसको मत देख, इसमें देख, बहुत खूब। इसको मत देख, इसमें देख। और जब तू इसमें देखेगा तो फातिहा मंजूरा का प्यार नजर आएगा, अजमल उलमा का वक़ार नजर आएगा, बुजुर्गाने दीन का जो है प्यार नजर आएगा, मौला अली के चाहो जलाल का एक नमूना नजर आएगा। इसलिए कि चाहो जलाल मौला अली को जिसने दिया है वो कोई और नहीं है, वाली का बेटा हम है बेशक। बहुत खूब। आज भी हर गैर मुक़ल्लिद बदमज़हब आपके नाम से डराता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गुलाम का ये आलम है तो आकाओं का आलम क्या होगा। अभी इरशाद भाई ने एक शेर कहा था, मुझे वो शेर याद नहीं है, कलम के हवाले से कि शमशीर है मेरे पीर मुर्शिद का कलम, शमशीर है दुश्मनों के लिए, तो यकीनन शमशीर है। बोले सुभान। हम सब हुसैनी है ना। इरशाद भाई ने मेरे सहन पर इतने वार किए हैं अपने अशार से कि मैं बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि अभी फट जाऊंगा। ऐसे अशार और रूहानियत की वो मंजिलें तय करा दिया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ कि दिलशाद भाई इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ये आपसे बुलवाया जाए। बोले सुभान अल्लाह। दिलशाद फारूकी को मुंबई से स्पेशल इसी में लाया गया और यहाँ पर फिट करके अशरफियों के दरमियान एक सच्चे और सही नसब फारूकी होने का सबूत पेश किया जा रहा है। इसलिए कि वो दौर भी निगाहों के सामने है तो फारूक आजम ने कहा था हसन मुश्तबा से, ए हसन मुश्तबा, आप कहते हैं कि मैं आपके बाप का थे, आपके बाप का नौकर हूँ, आपके नाना का गुलाम हूँ। अगर ये आप कहते हैं तो लिख कर दे दीजिए। फारूक आजम ने एक सनद ले लिया था और आगे फारूकी ने उस सनद को भी साबित कर दिया। बेशक बहुत खूब, बहुत खूब। हक है होगा वो हकीकत में अहले बैत तार के दर का होगा। बेशक। मैं दिलफरोज वाकया आपके ज़हन भड़कना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि उलमा के बारे में अपने समझ लें कि आलिम दीन होता क्या है। आज हम ने उलमाए किराम के वक़ार को लात मार दिया है। उलमा का एहतराम हमारे लिए कोई मायना नहीं है। कोई आलिम अगर कोई बात बयान करता है तो सुनता सुनता उसके बाद कहता चलो हो गया रहने। आप जैसे 365 चले गए, मैं आज का नहीं, मेरी उम्र 65 साल की है। तू अपने नसीबे पर मातम कर कि 365 आए लेकिन तुझको किसी से हिदायत नहीं नसीब हुई। आए देखें, अगर आपने उलमा का एहतराम करना छोड़ दिया तो फिर देखें नतीजा क्या है। जगह जगह देखें, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो करिया हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे वो रेल अड्डा हो, चाहे वो हवाई अड्डा हो, जब भी कोई आलिम गुजरता है शक की निगाह से देखा जाता है। जब भी कोई आलिम जाता है शकू को शुबहात की निगाह से देखा जाता है। और देखने वाला यही कहता
कहता है ये आलिम नहीं है, ये तो आतंकवाद जा रहा है, ये आलिम नहीं है, ये तो दहशतगर्द जा रहा है। अगर दाढ़ी और टोपी का नाम आतंकवाद है तो माफ करना, अगर दाढ़ी टोपी का नाम आतंकवाद होता तो फजले खैराबादी आतंकवाद होता। अगर दाढ़ी टोपी का नाम आतंकवाद होता तो याद रखना मुफ्ती अनायत अहमद का कौरवी आतंकवाद होगा। अगर आतंकवाद की पहचान टोपी और दाढ़ी है तो मोहम्मद अली जौहर और ऐसे बेशुमार उलमा 32,000 से ज्यादा जिन्होंने दादो रोशन को चुन लिया था, अपने मुल्क को आजाद करा दिया था, अगर दाढ़ी टोपी आतंकवाद में शामिल करती तो ये सारे उलमा आतंकवादी। अल्हम्दुलिल्लाह। आए देखें जरा उलमाए किराम का किरदार तो उठा कर देखें। आज उलमा की तहकीर की जाती है, उलमा की तस्लील की जाती है। एक चाय बेचने वाला, एक मूंगफली का ठेला लगाने वाला, उबाल के सिंगाड़े बेचने वाला, वो अपने माथे पर टीका लगा के बैठता है इस यकीन के साथ मेरे टीके को, मेरे धर्म को लोग देखेंगे तो इसका सम्मान करेंगे, मेरे टीके को अगर मेरे धर्म के लोग देखेंगे, सामान मेरे यहाँ से खरीदेंगे। उसको अपने टीके पर इतना भरोसा है और उसके कौम के लोगों को उस टीके का इतना सम्मान है कि जब भी किसी के माथे पर टीका देखते हैं तो उसको छुपकर आदाब बजा लाते हैं। तू कैसा मुसलमान है? एक टीके को गैर मुस्लिम देखकर आदाब करता है और जिसके सर पे अमाना होता है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है, अब इससे बड़ा कौन सा दलील चाहिए? इससे बड़ी कौन सी दलील चाहिए? इससे बड़ा कौन सा सबूत चाहिए? तब तू आलिम दीन का एहतराम। बेशक बहुत ये कोई लगानी नहीं मेरे दिल की, मेरे दर की कैफियत है जो मैं आपके सामने इजहार कर रहा हूँ, बयां कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी बात नहीं है, मेरे बाप दादा की बात नहीं, मेरे दरबार की बात नहीं है, किसी की तहरीक बोल रही है। और ये तहरीक आज की तहरीक नहीं, 100-200 साल की तहरीक नहीं है, ये उस जमाने की तहरीक है, 1400 साल पहले की तहरीक है। मुस्तफा के हमसे पाक उठाओ। मुस्तफा ने फरमाया है जिसने किसी सच्चे आलम की ज़ियारत की, किसी आलिम की ज़ियारत किया, गोया कि उसने मेरी ज़ियारत किया। किसी आलिम से मुसाफहा किया, उसने मुझसे मुसाफहा किया। जिसने किसी आलिम के हाथ को चूमा, गोया कि उसने मेरे हाथ को चूमा। जो किसी आलिम दीन के साथ बैठा, गोया कि वो मेरे साथ बैठा। और जो मेरे साथ दुनिया में बैठता है, करीब अल्लाह उसे जन्नत में मेरे साथ इस नजरिए से देखा है। आए देखे अल्लामा फजल हक खैराबादी के साथ चाहे 1857 की जब आग दहक रही थी, आपने जब तहरीक जिहाद का ऐलान फरमाया था और दुश्मनाने मुल्क ने जो है आपको खताई का लेबल जो है आपके ऊपर चिस्पा कर दिया था, आपको गिरफ्तार भी किया गया, आपको सजा भी सुनाई गई। मलिका विक्टोरिया के जज ने कहा था, ए अल्लामा साहब, मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका हमदर्द हूँ। आप सिर्फ एक बार क्यों नहीं कहते थे कि आपने ये फतवा जो सादिर किया है वो आपने होशो हवास में नहीं किया है? आप ये कहे कि मैंने होशो हवास में नहीं ये फतवा दिया है, एक बार सिर्फ कह दीजिए। आपने कहा नहीं, ये जो है एक आलिम दीन से नहीं हो सकता, एक नबी का गुलाम है जिसके ज़बान से ये बात निकल चुकी है, वो बात कभी वापस नहीं हो सकती है। और ये बात सच है, पत्थर की लकीर की लोग मिसाल देते हैं, अजी पत्थर की लकीर की कोई हैसियत नहीं है। पत्थर की लकीरें टूट सकती है, ऐसे हजारों पत्थर की लकीरें पिघल सकती है, लेकिन मर्द कलंदर की ज़बान से जो बात निकलती है वो तकदीर नहीं। आपने इनकार कर दिया, सजा हो गई इंतकाम की। जब मुसीबतों और सोबतों को उतार के आपके साहबजादे ने आपके परवाने निजात के कागज तैयार करा के अपने बाप की रिहाई के लिए आगे बढ़ा, करीब था मजमा नजर आया कि किसी का जनाजा आ रहा है। पता करने पर मालूम हुआ कि जनाजा किसी और का नहीं, आलिम दीन हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी का है। आंखों में आंसू, लेकिन जानते कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने खबर छोड़ा था कि लोगों सुनो, अगर मेरा मुल्क आजाद होता है, अगर मेरा मुल्क चंगुल से आजाद हो जाता है और अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो जाता है तो मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, बस इतनी ख्वाहिश है अल्लामा की। एक आलिम दीन का किरदार क्या होता है, एक आलिम दीन का वकार क्या होता है, एक आलिम दीन किस चीज से प्यार करता है। जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपने दीन का बाकी नहीं होता, वो अपने दीन का बाकी नहीं, न अपने मुल्क का बाकी, बल्कि जितना है वफादार अपने दीन का होता है उतना ही वफादार अपने मुल्क का होता है। आपने फरमाया था बस कोई
कोई आके मेरी कब्र पर इतना कह दे कि मौलाना आपने जो तहरीक चलाई थी आपका मुल्क आजाद हो गया है, आपका मुल्क अब आजाद हो गया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पहली मर्तबा हिंदुस्तान की क़यादत की बागडोर को अपने हाथ में लिया है और हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी की तारीफ को उठाकर पढ़ना शुरू किया है, उधर पढ़ता जा रहा है, आंखों से आंसू बहते हुए चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज के छोटे छोटे इन पंडितों से, आज के छोटे छोटे इन ठाकुरों से, इन छोटे छोटे और जालिम ठाकुरों से पढ़ो अपने बाप दादा की तारीख है, तुम्हारे बाप दादा ने क्या किरदार पेश किया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था, आंखों में आंसू आ गए थे, एक खत लिखा था कि इक़्तिदार की कुर्सी पर ये हुकूमत का फरमान साबित करने का वक्त नहीं है। अगर मौलाना बुखैरा जो तहसीन अगर ना पेश किए गए तो ये मुल्क के साथ गद्दारी होगी। फौरन लिख दिया जाकर ये कह देना कि अल्लामा की कब्र पर कि आपका मुल्क आजाद हो गया है। और जब आप पहुंचते हैं, जब जो है कासिम पहुंचता है, खत खोल कर खड़ा हो जाता है और मौलाना के जो है कब्र पर खड़े होकर कहता है, ए अल्लामा साहब का जो है आप तो इस दुनिया में नहीं है, अगरचे आप कब्र में आराम कर रहे हैं, लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए, आप जहाँ कहीं से भी सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। आपने जो तहरीर चलाई थी उस तहरीर के ज़ेरे तहत आपका मुल्क आजाद हो। मैं के ज़माने की एक हदीस बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल अपने कमरे में आराम फरमा है, उधर एक आयशा है, शोर कर रहे हैं, शोर शराबा है। आप जब महसूस करते हैं कि शोर हो रही है, दरवाजा खोल कर आप बाहर तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपस में मिट्टी उड़ा रहे हैं, कोई अपना घरौंदा बना रहा है, कोई अपनी हवेली बना रहा है, कोई अपने लिए बाग बना रहा है। अल्लाह के रसूल बाहर तशरीफ लाते हैं, एक एक का घर मुलाहिजा फरमाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सारे बच्चे इसी तरह मगन है खेलने के लिए। अल्लाह के रसूल और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि मिट्टी के टीले पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है, जिसका कपड़ा फटा हुआ है, जिसके सर पे कोई टोपी और अमामा नहीं है, जिसके हाथों में कोई रुमाल नहीं है, जिसके चेहरे पर गर्दो गुबार पड़े हैं और वो बच्चा अपने दोनों पाँव में अपना सर रख के रो रहा है सारों का बार। मुस्तफा पहुंचते हैं, कंधे पे हाथ रख देते हैं, जब मुस्तफा का हाथ कंधे पर पड़ता है बच्चा सहम जाता है। रहमत भरा हाथ कभी नहीं मिला था, शफकत कभी मैसर नहीं हुई थी, उठकर खड़ा हो जाता है, आदाब बजा लाता है और मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए बेटे ये बता, सारे बच्चे तो खेल रहे हैं, सबके जिस्म पर अच्छा लिबास है, सबके हाथ पैर साफ सुथरा है, किसी के सर पर जो है टोपी है, किसी के सर पे अमामा लगा हुआ है, तू कैसा बच्चा है कि तेरा चेहरा भी खाली है, तेरा सर भी खाली है, तेरे जिस्म पर जितने कपड़े हैं सब फटे हैं और बेबंद लगे हैं, क्यों रो रहा है, आखिर माजरा क्या है। वो बच्चा कहता है, या रसूलल्लाह फिदा का भी व उम्मी व नफ्सी, आप पर मेरे माँ बाप की जान कुर्बान, मैं भी आपके जान पर कुर्बान। कहा, या रसूलल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। कहा, या रसूलल्लाह नहीं कोई बस नहीं, बल्कि मेरी माँ ने मेरे हिस्से के कपड़े भी रख लिए हैं, मेरे बाप ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे अपने घर से निकाल कर दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लिया है। या रसूलल्लाह मेरा कोई यारो मददगार नहीं है, मैं जब घर से निकलता था इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के पास आकर मैं खेलता था, यही बच्चे मेरे सहारा थे। आज इन बच्चों ने मुझे ठुकरा दिया है, कहा तुम जाओ हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, इसलिए कि तुम्हारा कपड़ा फटा है, इसलिए कि तुम्हारे कपड़े पुराने हैं, इसलिए कि तुम्हारे नाखून गंदे हैं, इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पर है तेरे तुम्हारा चेहरा साफ नहीं है, इसलिए जाओ हम तुम्हें अपनी बेरादरी से निकाल रहे हैं। या रसूलल्लाह अब रो मैं तो क्या करूं, अब मैं मातम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए बेटे ये बता, ये कपड़ा गंदा है ये तो समझ में आता है, ये बताते हैं शर्मंद है जो खाक और मिट्टी पड़ी हुई है, तेरे चेहरे पर जो मिट्टी लगी है, तेरे सर के बालों में जो मिट्टी लगी हुई है, ये मिट्टी कैसी है, क्या तेरे ऊपर किसी ने मिट्टी फेंका है, क्या तुझे किसी बच्चे ने मारा है। कहा, या रसूलल्लाह नहीं नहीं। कहा, फिर ये मिट्टी कैसे आई है। अर्ज करता है, या रसूलल्लाह बच्चों के दरमियान मैंने देखा हसनैन करीमैन भी खेल रहे थे, जब मुझे किसी बच्चे ने सहारा नहीं दिया तो मैंने देखा हसनैन करीमैन खेल रहे थे और जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो अपने घर को चले जाते हैं। मैंने वो जगह याद कर रखी थी तो मैंने देखा यही वो जगह है जहाँ हसन का पैर पड़ा था, यही वो जगह है जहाँ हुसैन के कदम पड़े थे। या रसूलल्लाह अब तो मेरा कोई सहारा नहीं था, लेकिन यही काटे हुसैन मैंने अपना
बहुत हुई। या रसूल अल्लाह, ये कदमे हुसैन की मिट्टी है, ये कदमे हसन की मिट्टी है, अब ये मिट्टी नहीं है, इसीलिए मैंने इस मिट्टी को अपने सर पे उठाकर डाल दिया है। इतना सुना कि मुस्तफा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुस्तफा ने उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया। इरशाद फरमाते हैं, ए बच्चे ये बता, क्या मैं तेरा बाप हो जाऊं तो तुझे चलेगा? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे चलेगा, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आज से मेरा बाप मैं हूँ, तेरी माँ आयशा है, तेरी माँ आयशा है, अली तेरे चचा है। और ये कहकर मुस्तफा चले आ रहे हैं। जब बच्चों की जमात ने देखा कि मुस्तफा एक गरीब बच्चे से इतना प्यार कर रहे हैं, तो उस वक्त का मौजूद हर बच्चा जमीन पर घुटने लगा कर बैठ जाता है, हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ करता है, ए मालिक मौला, काश मेरी माँ मर गई होती, काश मेरा बाप मर गया होता, काश मुझे घर से खानदान वालों ने निकाल दिया होता, अगर मेरा बाप भी मर गया होता, मेरी माँ ने मुझसे घर से निकाल दिया होता, तो आज कोई सहारा देने के लिए आए या ना आए, अल्लाह के रसूल सहारा देने के लिए आ जाते, मुस्तफा मेरा सहारा हो जाते। हर बच्चा लरज रहा था, हर बच्चा कांप रहा था, मुस्तफा ने उसे गले लगा लिया। मैं कहना चाहता हूँ, हमने मुस्तफा को तो नहीं देखा है, लेकिन आले मुस्तफा के रूबरू खड़े हैं। अगर आले रसूल की निगाह उठ जाएगी तो हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी और सुबह क़यामत तक के लिए हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हज़रत या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक फिक्री पैगाम, बस एक फिक्री पैगाम मैं आप तक रखना चाहता हूँ, जिनको खत्म कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले सऊदी अरबिया के हुक्मरानों ने फैसला लिया कि मदीने तैयबा में सिनेमा हॉल बनाए गए, इससे मदीने को इज्जत होगी। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे तो तरक्की के रास्ते पर आ जाएगा हमारा शहर। माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने देखा बरतानिया के मुसलमानों ने, अमेरिका और लंदन में रहने वाले मुसलमानों ने, टर्की और जापान में रहने वाले मुसलमानों ने, चाइना और इराक और अफगानिस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने, हर जगह के मुसलमानों ने इसका विरोध किया। हिंदुस्तान में भी मुंबई वगैरह जगह जगह इसका विरोध हुआ, लेकिन हिंदुस्तान से किसी वहाबी ने विरोध नहीं किया, किसी देवबंदी अहले हदीस ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? इसलिए कि बात लेन और देन की थी, पितरों डॉलर और रियाल की थी, इसलिए नहीं निकला। हमने अपनी मस्जिद से जुमा के खुतबे से ऐलान किया था, आज मैं दुनिया भर के वहाबियों को चैलेंज करता हूँ और तुम्हें जगह रहने वाले तमाम गैर मुक़ल्लिदों को चैलेंज करता हूँ कि तुम ऐलान कर दो कि हम सऊदीया से उस वक्त तक कोई ताउन नहीं लेंगे जब तक सऊदीया के हुक्मरान अपने ऐलान को वापस। लेकिन नहीं, क्यों? इसलिए इनका मुआहिदा सऊदीया के रियाल में है, इसलिए इनके जमीन पर कुछ असर नहीं पड़ता, चाहे इनको खिलाया जाए या पिलाया जाए या नारे जहन्नम में जला दिया जाए। इनका जमीन तो मुर्दा हो चुका है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता के मिस्ताक, इनका जमीन मुर्दा हो चुका। तो वहाबी देवबंदी इसका विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि इसका मुआहिदा सऊदीया के रियाल पे है। हम कल भी ऐसी बातों का इनकार कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्योंकि हम सुन्नी मुसलमान हैं और हमारा सौदा सऊदीया के रियाल पे नहीं, मुस्तफा की आल पे है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।